All right, so we will continue with whatever we have left with in the last lecture. So in last lecture we were studying about the pre-Raphaelites. We have completed the pre-Raphaelites. I guess I haven't uploaded that video because I wasn't able to record that video. All right, so we have completed pre-Raphaelites. Just let's quickly revise what pre-Raphaelite was all about. Pre-Raphaelite this was a movement that was started in 1848 by the group of painters and poets, right? And the basic idea behind creating or formalizing this particular movement was to bring back the medieval art, right, recovering the purity of medieval art. So the name Raphael, basically Raphael, he was an Italian artist. So with pre, it means that they want to bring the medieval art or the art before the time of Raphael. Okay, they want to bring that purity of medieval art back into the art or the literature of that contemporary time. Okay, so Raphael, he was an Italian writer. So what they used to think, the artist of this time, right, they used to think that Raphael and the Renaissance, it has polluted the art. Okay, so what they are trying to do, they're trying to bring that moral truthness back to arts. Okay, the simplicity, the moral truthness, all these elements they want to bring back to the arts, right? So there were various things related to when they imply all these ideas to painting and to poetry. There were various ideas that they have employed. Okay, we have discussed that. I'm not going to again discuss it. All right, so let's just jump into the today's topic, that is the aestheticism. Okay, the aesthetic movement and the decadence movement. Okay, so these two movements, they are very important. So what we have studied so far, that the Victorian age, the reign of Victorian age, or the reign of Queen Victoria, it started from 1837 to 1901, and we roughly divide Victorian age from 1832 to 1901, or sometime 1837 to 1901. But this division this is not limited to the division or towards the reign of Queen Victoria. Victorian period has a further subdivision, the subdivision on the basis of the various movements that were there in the Victorian period. The first movement we have studied about pre-Raphaelite. Okay, since 1848 to 68 there was pre-Raphaelite, and the last 2 decades of Victorian period, right, from 1880 to 1901. Okay, the last 2 decades of this period is called the age of aestheticism. ओके तो इसे हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ एस्थेटिसिज्म बोलते हैं. एंड एस्थेटिसिज्म के बाद का जो डिकेड है उसको इन्हीं में मिक्स होके जो डिकेट है, कुछ जो टाइम है वो एस्थेटिसिज्म का है, और कुछ जो टाइम है इन्हीं डिकेट्स को हम क्या बोलते हैं, डेकेडेंस भी बोलते हैं, राइट. सो डेकेडेंस मूवमेंट और एस्थेटिक जो मूवमेंट है, ये दोनों मूवमेंट साथ साथ में ही चल रहे थे. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एस्थेटिसिज्म का इलॉबरेटिव जो रूप है वो क्या है, वो डेकेडेंस. इस पर्टिकुलर मूवमेंट के जो प्राइम चीफ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एस्थेटिसिज्म होता क्या है, राइट. जो एस्थेटिसिज्म वर्ड है, इट इज़ टेकन फ्रॉम एस्थेटिक्स. ठीक है, इसको हम स्पेल एस्थेटिक्स से भी कर सकते हैं. बेसिकली एस्थेटिक्स जो होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो किससे डील करती है, डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट, राइट. एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डील विद द फिलॉसफी ऑफ आर्ट. तो ये क्या है, दिस इज अ स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एंड सेंसरी इमोशनल वैल्यूज. ओके, एंड समटाइम इट इज कॉल्ड जजमेंट्स ऑफ सेंटिमेंट्स एंड टेस्ट. ओके, तो एस्थेटिक जो है वो एस्थेटिक, इट कवर्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एस्थेटिक्स, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट. Okay, so it basically consider what happens in our mind when we engage with artistic experience or creation. ये थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन आपको रोमांटिक एज का भी आ रहा होगा कि यस रोमांटिक एज में भी तो ये सारी चीज़ें हुई थी कि वेन एवर वी इंगेज विद सम आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस और क्रिएशन, तो हमारे माइंड में जो चेंजेस आते हैं, हमारे माइंड में जो वट एवर हैपन्स इन अवर माइंड, वो जो है बेसिकली जो एस्थेटिक है उसे वो कवर करती है. वो उस एस्थेटिक एक्सपीरियंस की, उस एस्थेटिक जजमेंट की बात करती है.
सिमिलरली डैफोडिल्स को याद करो कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को देखा एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस he had in his mind, right? Whenever he had seen those he glanced over those daffodils, thousands of daffodils, right? तो उस एस्थेटिक एक्सपीरियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ओके, सो यस, सो व्हेन वी इंगेज इन एस्थेटिक एक्सपीरियंस और क्रिएशन, जैसे हम किसी विजुअल आर्ट को देखते हैं, हम किसी लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, हम किसी म्यूज़िक को सुन रहे हैं, एंड वेन एवर वी आर एक्सप्लोरिंग नेचर, तो ये जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, ये जो एस्थेटिक क्रिएशन है, उसका हमारे माइंड पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस हमें हो रहा है, किस तरीके के जजमेंट हम वहाँ पे दे रहे हैं उस ब्यूटी को देख के. ओके, सो यस, ये जो टर्म एस्थेटिक है ड्राइव फ्रॉम एस्थेटिकोज, जिसका मतलब होता है ऑफ सेंस परसेप्शन. Okay, and aesthetonomy, which means I perceive, feel and sense. Okay, so key concept क्या है एस्थेटिसिज्म में? सबलाइम की यहाँ पे बात होती है, ब्यूटीफुल की यहाँ पे बात होती है, पिक्चरस्क की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रैजिक, अनकैनी एंड ऑल दीज एक्सपीरियंसेस. सो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम क्या चीज़, किन चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेचर ऑफ आर्ट क्या है, फंक्शन ऑफ आर्ट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट क्या है. ओके, ये सारी जो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको बेसिकली एस्थेटिसिज्म में एक्सप्लोर करते हैं. सो एस्थेटिक वर्ड का हमें मीनिंग पता चल गया. अब वी विल ट्राई टू इलाबोरेट ऑन एस्थेटिसिज्म. सो बेसिकली एस्थेटिसिज्म होगा क्या? एस्थेटिसिज्म बेसिकली होता क्या है? एस्थेटिसिज्म, जिसको हम एस्थेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, दिस इज दिस वॉज अ लेट 19th century यूरोपियन ट्रेंड इन द डेकोरेटिव एंड विजुअल आर्ट्स एंड लिटरेचर. ओके, इसका मेजर मोटो क्या है? आर्ट फॉर आर्ट सेक. ओके, ये क्या है? दिस वॉज द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ एस्थेटिसिज्म. ओके, यानी कि आर्ट जो है इट शुड फोकस ऑन द ब्यूटी ओनली. आर्ट should not have any moral or political or deductive purpose. It should exist solely for its beauty. तो एस्थेटिक मूवमेंट का जो मेजर एम्फोसिस है वो किस चीज़ पे है? वो ब्यूटी पे है. अब ये जो मूवमेंट है वो क्यों शुरू हुआ है? ओरिजिन क्या है? एस्थेटिक मूवमेंट बेसिकली 19th century में शुरू हुआ है. कहाँ पे? इंग्लैंड में. ओके, और इट वॉज लार्जली अ रिजेक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड अगलीनेस एंड मटेरियलिज्म ऑफ विक्टोरियन एज. राइट, विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर था, विक्टोरियन एज में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी, हमने सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे पढ़ा था. तो लेटर फेजेस में, ठीक है, ये जो लेट 19th century की बात होने लग रही है, तो इन फेजेस में जितनी भी अगलीनेस है, मटेरियलिज्म है, क्योंकि ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है एंड मॉरल्स जो हैं वो घट रहे हैं, ये सारे जो रीजंस थे, इन रीजंस के अगेंस्ट एक क्या था? एस्थेटिसिज्म एक रिएक्शन था. ओके, ये हम इंग्लैंड के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, बट एस्थेटिसिज्म का जो हिस्ट्री है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है. ये जो हिस्ट्री है हम ये प्लेटो और एरिस्टोटल में भी की राइटिंग्स में भी देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने क्या करा था? एस्थेटिसिज्म को पोइट्री से कंपेयर करने की कोशिश करी थी और उसमें फिलोसफिकल एंगल्स उन्होंने जनरेट करने की कोशिश करी थी. राइट, उन्होंने एस्थेटिसिज्म पे लिखा था और उन्होंने क्या करा था? दे मेक इट ए सिग्निफिकेंट फील्ड विद इन द फिलोसफी. राइट, सो दिस वाज द थिंग. सो एस्थेटिसिज्म बेसिकली क्या था? जो हमने आइडियोलॉजी पढ़ी थी यूटिलिटेरियनिज्म की, राइट, यूटिलिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टैब्लिश हुआ था. ओके, सो एस्थेटिक्स जो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? दे आर रिजेक्टिंग द यूटिलिटेरियनिज्म, द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. राइट, सो व्हाट दे आर डूइंग? So, what they are doing, that many artists and writer, what they begin to feel, I'm talking about the late 19th century. So, what they begin to feel that art should not be burdened, by the need to convey a moral or political message. Basically art जो है उसको कोई एक moral या political message नहीं देना चाहिए. Instead of that, whenever you're creating a literary text, ज़रूरी नहीं है कोई भी आर्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको क्रिएट करने की वजह क्या हो, कोई एक मॉरल या पॉलिटिकल मैसेज देना हो. इंस्टेड ऑफ दैट, these artists, these writers, they feel that art should exist, purely for its beauty.
आर्ट का जो एक्सप्रेशन है वो प्योरली किस चीज़ के लिए होना चाहिए, ब्यूटी के लिए होना चाहिए। ओके सो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है बच्चों एस्थेटिसिज्म का, दिस मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर कल्चरल शिफ्ट, right, that included decadent literature in France and symbolist movement in poetry। ये जो दो मूवमेंट हैं ये साथ साथ में चल रहे हैं। ओके ये क्या हो रहा है, कल्चरल शिफ्ट हो रहा है विक्टोरियन लिटरेचर से लेके इधर को जब हम आ रहे हैं, डेकेडेंट लिटरेचर जो फ्रांस में हो रहा है, सिम्बलिस्ट मूवमेंट जो पोइट्री में हो रहा है। ओके सो ये क्या है, इट हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस बेसिकली किस चीज़ पे, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड लिटरेचर। जब हम मॉडर्न एज को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एस्थेटिसिज्म और डेकेडेंस मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट्स ने कितना प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न आर्ट और लिटरेचर को डेवलप करने में, राइट। और धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले जो मूवमेंट होते हैं वो शुरू होते हैं, हम क्या देखते हैं, एस्थेटिक और डेकेडेंस जो मूवमेंट होते हैं दे फेडेड, ओके दे फेडेड अराउंड 20th सेंचुरी। लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो आपको दिखेगा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। ऑलराइट सो दिस इज़ द थिंग। नाउ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये जो मेजर पॉइंट है एस्थेटिसिज्म के। सबसे पहला मोटो जो मैंने आपको बताया, दैट आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि प्रिंसिपल इसका जो मेन मोटो था, दिस प्रिंसिपल ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, दिस वॉज वेरी रिवोल्यूशनरी एट दैट टाइम, बिकॉज आर्ट उस समय पे विक्टोरियन टाइम की जब हम बात करें, हमने यूटिलिटेरियनिज्म की को स्टडी किया था, राइट। उसमें हमने क्या देखा कि आर्ट को किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता था कि आर्ट एक एक मॉरल या डिडक्टिव पर्पस है किसी भी आर्ट को क्रिएट करने का, राइट, कि कोई भी आर्ट अगर क्रिएट करी जा रही है इट शुड सर्व अ मॉरल या डिडक्टिव पर्पस। लेकिन एस्थेटिक जो आइडिया है वो क्या बताता है, दैट आर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर इट्स ओन ब्यूटी। ओके और ये जो एक पर्टिकुलर मैसेज है ना बच्चों, इसने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लेके आए, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट क्रिएट किया इन द परसेप्शन ऑफ आर्ट। इससे क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, this particular principle, it allowed for the exploration of forms, colors and techniques independent of subject matter। इस तरीके के जो लिबरेटेड आर्ट एंड आर्टिस्ट को जो आइडियाज़ मिलने लगे, इससे क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों ने आर्ट एंड आर्टिस्ट को लिबरेट किया, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करी। और फ्रीडम किस चीज़ की, टू क्रिएट प्योरली फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग, ओके, रादर देन to instruct or comment on society or morality। so इनका जो प्राइम emphasis था वो किस पे था, इनका प्राइम emphasis था was on beauty। so what they believe that beauty was the ultimate value। so the focus on the visual and sensual quality of art, it often resulted in the work that were intricate, ornate or highly detailed। तो ये जो ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का इन अ वेरी अनकन्वेंशनल वे, राइट, तो ये इसने क्या करा, इस आइडिया ने क्या करा, इट पेव द वे फॉर मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न एक्सप्लोरेशन ऑफ एस्थेटिसिज्म, राइट। सो ये इसीलिए ये जो दो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। नाउ यस, तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, मेजर कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या हो गए, इट स्टडी ब्यूटी एंड टेस्ट, राइट। आर्ट के क्रिटिसिज्म एंड एनालाइज को करने के लिए क्या करा इन्होंने, डिफरेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन फॉर्म करे, फॉर्म्स एंड जॉनरा। एंड राइटर्स एट दिस टाइम दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द रोल ऑफ आर्टिस्ट, राइट, द व्यूअर, द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड द मीडियम, ये सारे जो हैं एनालाइज होने लगे, डिफरेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्मुलेट होने लगी, ठीक है। और आर्ट जो है उसकी एक फ़िलॉसफी के रूप में जो है उसका एक फोरग्राउंड तैयार होने लगा, ठीक है। जो एस्थेटिक थे वो दे एक्सप्लोर वेरियस प्रोफाउंड क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ ए वर्क ऑफ आर्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन और पर्पस ऑफ आर्ट, एंड हाउ आर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन आर्ट। तो इस तरीके की जो फिलॉसफी है आर्ट को लेके वो जनरेट होने लगी, ओके। सो एस्थेटिक्स बेसिकली किस चीज़ों पे फोकस करने लगे, इन प्रोफाउंड क्वेश्चंस पे आर्ट को स्टडी करने लगे, आर्ट की फिलॉसफी को जो है स्टडी करने लगे। एंड यस, सेंसरी जो परसेप्शन है और रिस्पॉन्सेज है, आर्ट जो एस्थेटिक्स हैं उनको बेसिकली देखते थे। दे आर एस्थेटिक्स, दे लुक एट हाउ ह्यूमन परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ आर्ट,
on a sensory and emotional level. So basically aestheticism क्या चीज़ स्टडी करता है? It also study the emotion, feelings and sensation that art evokes, right? So इसीलिए जो है aesthetic movement बहुत ज़्यादा important हो जाता है. Then ये जो क्लासिक एस्थेटिक्स थे वो कॉन्सेप्ट क्या थे? ओके, सबलाइम के, ब्यूटिफुल के, पिक्चरस्क के, राइट? तो ये जो क्लासिक एस्थेटिक कॉन्सेप्ट थे, उन्होंने क्या करा? दैट एग्जामिन द नेचर एंड वैरायटी ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस. अब ये सबलाइम, ब्यूटिफुल एंड पिक्चरस्क क्या होता है? सबलाइम बेसिकली इट रेफर्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ एव एंड टेरर ऑफ्टन इन रिलेशन टू नेचर. और जो ब्यूटीफुल की हम बात करते हैं, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज बेसिकली रेफर टू द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड एडमायरेशन, ओके, टिपिकली एसोसिएटेड विद हार्मनी एंड प्रोपोर्शन. और पिक्चरस्क हम किसको कहते हैं? पिक्चरस्क बेसिकली होता है, इट रेफर्स टू द विजुअली प्लीजिंग सीन ऑफ्टन एसोसिएटेड विद नेचर एंड लैंडस्केप. तो तुम लोग देख रहे हो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे? नेचर के जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है ना, नेचर और उसके जो वैरायटी ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस है उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. तो 3 टाइप ऑफ ब्यूटी इन्होंने यहाँ पे 3 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस को यहाँ पे इन्होंने रेफर किया है कि सबलाइम क्या होता है. ठीक है, लेट मी राइट इट. दे फोकस ऑन yes, they focus on ये क्या है? Yes, they focus on sublime, right? They focus on sublime. They focus on beautiful, and they focus on picturesque. Okay? इन तीनों के क्या मतलब होते हैं? I have told you already. I will try to share notes with you all also, right? तो इन तीनों चीज़ों पे बेसिकली एस्थेटिसिज्म का फोकस होता है. और ये क्या है? ये सारे क्लासिक एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, राइट? और फिर एक जो टर्म आती है एस्थेटिक जजमेंट की, राइट? एस्थेटिक जजमेंट क्या होती है? एस्थेटिक जजमेंट होती है द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंस, राइट? इवेल्युएट करना एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स को, एक्सपीरियंस को, ऑफ्टन इन द टर्म ऑफ ब्यूटी और सब्लिमिटी. ओके, सो ये क्या करती है? डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सच जजमेंट और वेदर दे आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव और यूनिवर्सल. तो एस्थेटिक जजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड इट इज़ अ प्राइम एलिमेंट इन द एस्थेटिसिज्म और द एस्थेटिक मूवमेंट. ओके, एक फाइनल चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ आर्ट क्या है इन सोसाइटी. ओके, तो एस्थेटिक्स जो थे वो इन चीज़ों पे भी एम्फोसिस करा करते थे कि एस्थेटिसिज्म का आर्ट का बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन है सोशल सोसाइटी में. तो कैसे आर्ट कंट्रीब्यूट करती है सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्कोर्सेस में. ठीक है, तो किस तरीके से हाउ आर्ट कैन चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स, how it can promote certain ideology और how it can provide social commentary. इन चीज़ों की स्टडी भी कहाँ पे एस्थेटिसिज्म में होती है. ओके, एंड जो मेजर प्रोपाउंडर थे एस्थेटिसिज्म के, वॉल्टर पैटर बेसिकली ही वॉज द राइटर हु इंट्रोड्यूस एस्थेटिसिज्म टू इंग्लैंड. ओके, एस्थेटिसिज्म बेसिकली जो था फ्रेंच मूवमेंट था. ओके, इट वॉज वॉल्टर पैटर जिन्होंने क्या करा था? एस्थेटिसिज्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था. और जो दूसरे कुछ राइटर्स थे, ऑस्कर वाइल्ड, लेसी स्वनबर्न, ये सारे कुछ मेजर राइटर्स हैं जो एस्थेटिक मूवमेंट से बिलोंग करते हैं या एस्थेटिक मूवमेंट के मेजर प्रोपाउंडर थे. लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट डेकेडेंस मूवमेंट. व्हाट इज़ डेकेडेंस मूवमेंट? अब बच्चों उससे पहले हम ये देख लें कि डेकेडेंस का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या है. ओके, लिटरल मीनिंग डेकेडेंस का क्या है? इट इज़ डेकेडेंस जो है, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन. ओके, डिके, डिटेरियोरेशन. ओके, ये क्या है? एक डिक्लाइन की स्टेट है, एक डिके की स्टेट है. ओके, इट मीन्स फॉलिंग अवे और डिक्लाइन. ओके, तो जब इसका ओरिजिनल हम यूसेज देखें, डेकेडेंस का मतलब क्या है? इट रेफर टू द प्रोसेस और अ स्टेट ऑफ मॉरल, कल्चरल और सोसाइटल डिके. ओके, अब ये जो बच्चों बेसिकली ये टर्म है, ये कई तरीके से, इनके कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे हैं. डेकेडेंस जो एक वर्ड है प्रॉपर,
एक जो टर्म है, ये इसका जो पूरा थ्रू आउट हिस्ट्री में इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, राइट। लेकिन जब भी हम पीरियड और सोसाइटी से बात कि इसको एसोसिएट करते हैं, तो ये यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से आप रिसीव इसे कर सकते हैं, दिस इज अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन और मॉरल डिके। सो बेसिकली ये सजेस्ट क्या करती है, इट इज़ द लॉस ऑफ विटिलिटी, वर्चूज और प्रिंसिपल्स, राइट। सो डेकेडेंस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस टर्म को मेजर करें, इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो दिस टर्म डेकेडेंस, इट वॉज एम्ब्रेस्ड and reinterpreted by the artists and writers, right, who sought to challenge the traditional norms and convention. Okay, तो उन्होंने क्या करा, basically they explored the theme of decay and decline, often using them as a metaphor for social and moral or artistic criticism, right. सो डेकेडेंस जो टर्म है उसको जो यूज़ किया है डेकेडेंस मूवमेंट में आर्टिस्ट और आर्टिस्ट एंड राइटर्स ने, उन्होंने किस तरीके से किया है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स और कन्वेंशन को चैलेंज करने के की तरीके से। ओके, उन्होंने क्या करा, जितने भी थीम्स डिके और डिक्लाइन की, ओके, उनको स्टडी करना स्टार्ट किया और इसी थीम को, डिके और डिक्लाइन की जो थीम है उसको क्या करा, मेटाफर्स की तरह यूज़ किया सोशल या मॉरल या आर्टिस्टिक क्रिटिसिज्म के लिए। ओके, सो दिस वाज द डेकेडेंस मूवमेंट। सो बेसिकली ये जो डेकेडेंस मूवमेंट था, ये कल्चर और लिटरेरी मूवमेंट था जो लेट 19th सेंचुरी में मर्ज हुआ, पर्टिकुलरली यूरोप में। ओके, और जैसे मैंने तुम्हें इसकी मीनिंग बताई, ये जो मूवमेंट है, ये दिस इज़ अ रिएक्शन अगेन द परसीव्ड मॉरल एंड सोशल डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो ये एक तरीके से, जैसे तुम्हें उस समय पे भी बताया था कि ये क्या है, एक तरीके का एवोल्यूशन है एस्थेटिसिज्म का। ओके, तो ये क्या है, अगेन जिस तरीके से एस्थेटिसिज्म, दिस वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड मॉरल्स, राइट। सिमिलरली डेकेडेंस मूवमेंट भी क्या था, इसी तरीके का मूवमेंट था, दिस वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट परसीव्ड मॉरल एंड सोशल डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट सेलिब्रेट the sensuality, okay, it celebrate the pursuit of unconventional pleasure, right। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और जो मूवमेंट था ना बच्चों, ये मूवमेंट बेसिकली इट रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड आर्टिस्टिक कन्वेंशन। और यूजुअली ये जो मूवमेंट है, ये कौन सी थीम्स को एम्ब्रेस करता था, इट एम्ब्रेस द थीम ऑफ डिके, डेकेडेंस एंड डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। So everything is not colorful, right? Everything is dark. तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के जो डार्कर एस्पेक्ट्स हैं, जो जिसे यूजुअली विक्टोरियन एज में हाइड करने की कोशिश करी जाती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश करी जाती थी, उन सारे वैल्यूज़ को, उन सारी नॉर्म्स को ये जो मूवमेंट है, ये पर्टिकुलर मूवमेंट रिजेक्ट करता था। एंड इट जस्ट फोकस ऑन डिके एंड डेकेडेंस एंड डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हम अगर इसके की फीचर्स की बात करें कि ओके व्हाट आर द वेरियस की फीचर्स ऑफ डेकेडेंस मूवमेंट, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इट वाज ए क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, राइट। सो डेकेडेंस बेसिकली है क्या, इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द प्रिवेलिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द टाइम। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे देखो लेट विक्टोरियन एरा की बात कर रहे हैं। ओके, तो इट वॉज इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द रिजिड मॉरलिज्म, जो हमने पढ़ा था कि विक्टोरियन एज में मॉरलिज्म पे फोकस बहुत ज़्यादा करा जाता था। ओके, तो ये जो था, इट वाज क्रिटिकल ऑफ दैट रिजिड मॉरलिज्म। तो डेकेडेंट जो राइटर एंड आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने चैलेंज किया, ओके, एंड दे ट्राई टू सबवर्ट दीज नॉर्म्स टू देयर वर्क्स। ओके, एंड यस, सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका ये है कि इट एम्फसिस ऑन द डेकेडेंट प्लेजर। डेकेडेंट प्लेजर पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस था। ओके, तो दिस मूवमेंट बेसिकली इट एम्ब्रेस द फैसिनेशन विद फॉरबिडन एंड अनकन्वेंशनल प्लेजर्स। ओके, ऐसी प्लेजर्स जो बहुत ज़्यादा फॉरबिडन थे, अनकन्वेंशनल थे, दे एम्ब्रेस्ड इट, राइट। इन्होंने क्या करा, दे सेलिब्रेटेड एक्सेस, दे सेलिब्रेटेड इंडल्जेंस, दे सेलिब्रेटेड सेंसुअल एक्सपीरियंस। इसीलिए जब भी हम डेकेडेंस डेकेडेंस मूवमेंट के टाइम का जो लिटरेचर है उसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं, वी विल ऑफ्टन फाइंड द थीम ऑफ सेक्सुअलिटी, हेडोनिज्म, ट्रांसग्रेशन। ये जो क्या है, एक तरीके से ये सारे थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, दीज थीम्स दे ऑफ्टन ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन ब्यूटी एंड डिके। ओके,
As I've told you that, decadence share some common ground with aestheticism. Okay, and both these movements they emphasize on the importance of aesthetics and pursuit of beauty. But symbolism, it has a profound impact. Okay, it played a significant role in decadent movement, using these rich and evocative, symbolism to convey the complex emotion. ओके, डेकेडेंस मूवमेंट में क्या हुआ था, ये जो सिंबलिज्म है इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. ओके, तो सिंबलिज्म के कुछ जो फैक्टर्स थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इमोशंस को यूज़ करना, सबकॉन्शियस डिज़ायर्स को यूज़ करना, द इल्यूसिव नेचर ऑफ रियलिटी को यूज़ करना, ये सारे जो थीम्स थे उसमें इन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया, रिच और एवोकेटिव जो है सिंबलिज्म को यूज़ किया. इन सारे इन इमोशंस को या डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबलिज्म का बेसिकली इन्होंने यूज़ किया है. ओके, और जब हम ह्यूमन के डार्क साइड की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या करा है, थीम ऑफ डेथ को एक्सप्लोर किया है, डिके को एक्सप्लोर किया है, मैडनेस को एक्सप्लोर किया है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिज़ायर को इन्होंने क्या करा है, एक्सप्लोर करा है. ओके, सो ये जो मूवमेंट है ये कम्प्लीटली रिजेक्ट करता था द नोशन ऑफ प्रोग्रेस, और उन्होंने क्या एम्ब्रेस किया, सेंस ऑफ डिक्लाइन एंड डीजनरेशन, कि हर चीज़ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, हर चीज़ डीजनरेट हो रही है. दिस इज़ व्हाट they embraced. Okay, and they completely reject the notion of progress. Nothing is progressing, everything has a sense of decline in it, everything has a sense of degeneration in it. Okay, so ये सारी कुछ जो एलिमेंट है जो इन्होंने अपने आर्ट में, अपने लिटरेचर में इंक्लूड करी थी. तो जो प्रोमिनेंट फिगर्स जो थे, जो डेकेडेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, कुछ राइटर्स के हमने देखो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जस्ट रीड इट. चार्ल्स बॉडलेयर, okay, Joris Carl Huysman, Arthur Rimbaud, okay, Paul Verlaine and Aubrey Beardsley. इनके जो बच्चों वर्क्स थे ये बेसिकली दे चैलेंज द मॉरल, सोशल एंड आर्टिस्टिक कन्वेंशन ऑफ द टाइम. और इनके जो वर्क्स थे दे हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट था ऑन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चरल मूवमेंट दैट फॉलोड. ओके, तो ये जो दो मूवमेंट थे ना, स्टैटिसिज्म एंड डेकेडेंस मूवमेंट, इन्होंने बेसिकली क्या करा था, इट पेव देयर वे टुवर्ड्स मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. तो जब मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को हम पढ़ेंगे तो कुछ एलिमेंट हमें डेकेडेंस और स्टैटिसिज्म के वहाँ पे मिलेंगे. स्पेसिफिकली डेकेडेंस के जो मॉडल्स है, डेकेडेंस के जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें मॉडर्न लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में मिलते हैं. ख़ास तौर पे ये डिक्लाइन एंड डीजनरेशन के जो आइडल्स हैं ये हमें मॉडर्न लिटरेचर में देखने को मिलेंगे. दैट वी विल स्टडी लेटर. सो आई एम जस्ट होपिंग इट दैट आपको स्टैटिसिज्म एंड डेकेडेंस मूवमेंट ये क्लियर हो गया होगा. इन टुमारोज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस आर्टिस्ट एंड राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज. ऑलराइट, so till then keep studying and take care all of you.